Hello, good morning, students. So, I am here once again for our new English lesson, new online class, and we will today see a story from our supplementary reader's book, Moments, and the name of the story is The Happy Prince by Oscar Wilde. Dear friends, this particular story is a world famous story and acclaimed by the readers all over the world. Oscar Wilde, an Irish poet, Irish writer and a poet, he wrote very insightfully, and through each of his story, we will find a message of compassion, a message of love, message of peace, and his insight to each character is ultimate. You see, so in 8th class, dear friends, you have seen the story The Selfish Giant. The story is also that story is also from Oscar Wilde, and this particular story, The Happy Prince, also has a message. So, message of sacrifice, message of love, message of peace, and message of compassion for the poor and the lonely and the lost. So, we will see this. The Happy Prince. Yes. Now, the writer Oscar Wilde, he was born in 1854 in Dublin, Ireland, and he was died in November 1900 in Paris, France. He was an Irish wit, poet, and dramatist whose reputation rests on his only novel, The Picture of Dorian Gray, and on his comic masterpieces, Lady Windermere's Fans in 1892, and the importance of being earnest. You can say that he was a spokesman for the late 19th century aesthetic movement in England, which advocated art for art's sake, and he was the object of celebrated civil and criminal suits. Okay, now all his stories depict a very sound message of love and compassion, and in this story also, in this story, The Happy Prince, also you will see that the little swallow and the happy prince, they both are giving the message of love and sacrifice. Okay, fine. The Happy Prince. The Happy Prince was a beautiful statue. हैप्पी प्रिंस जो था एक स्टैचू है, और वो कहाँ बसा है देखिए. He was covered with gold, he had sapphires for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? So, we will start the lesson. High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. एक शहर है, और शहर के बीचों बीच ऊंचे कॉलम पर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू लगा है, और he was gilded all over with thin leaves of fine gold, and for eyes he had two bright sapphires. वो पूरा का पूरा, उसका पूरा शरीर जो है वो गोल्ड का बना हुआ है. ऊपर से जो है उसको लीव्स लगे हैं गोल्ड के पत्ते उसके स्टैचू पर लगे हैं. एंड फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट
सफ़ायर, और उसकी जो आंखें हैं ये दो ब्राइट सफ़ायर से बनी है। एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज सोर्ड हिल्ट। ये देखो, इसको बोलते हैं सोर्ड हिल्ट। और उसका जो सोर्ड है, उसकी जो तलवार है, उस पर जो है एक रेड कलर का रूबी डायमंड वहाँ पर लगा है। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल स्वेलो। एक रात क्या हुआ कि एक लिटिल स्वेलो, छोटा सा बर्ड जो है, माइग्रेटेड बर्ड्स होते हैं स्वेलो, ये वहाँ से गुजर रहा था और उसको रात हो गई। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर। और ये माइग्रेटेड बर्ड होते हैं, और यहाँ पर जो है, मान लीजिए फ्रांस है, यहाँ पर जो है अब बर्फबारी होने वाली है, स्नो आने वाला है, फ्रॉस्ट आने वाला है। तो यहाँ पर अगर वो रहेंगे तो ही दे कुड बी डेड। तो उसके सारे के सारे दोस्त जो है पहले ही जो है नील रिवर जो है इजिप्ट में, उस तरफ निकल गए। लेकिन ये थोड़ा सा इमोशनल है स्वेलो, ये थोड़ा सा वहाँ पे रुक गया, और लास्ट में जो है उसने भी डिसाइड किया कि उसको भी जाना है। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू। देन ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। दिन भर वो चलता रहा, उड़ता रहा, और रात के समय में वो सिटी में आया। और जैसे वो सिटी में आया, उसने कहा कि वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस। उसने कहा कि अब मैं कहाँ रुकूँ, रात का इंतज़ाम क्या है। मुझे लगता है कि शहर ने कुछ प्रिपरेशंस बर्ड्स के सोने वगैरह के लिए किए होंगे। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। ये देखिए यहाँ पे उसको बाद में क्या दिखा, वो एक स्टैचू दिखा टॉल कॉलम पे। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ से वो उल्टा हुआ आ रहा है और उसको वो स्टैचू दिखा। तो जैसे उसने स्टैचू देखा, गोल्डन स्टैचू मान लीजिए, तो उसको बड़ा अच्छा लगा। तो बोलता है आई विल पुट अप देयर, चलो मैं यहीं रुक जाता हूँ। ही क्राइड इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। बहुत अच्छी जगह है, बड़ा सा प्लेटफॉर्म है नीचे, है ना, और वहाँ पर वो रुक गया है। उसने कहा कि प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर यहाँ पर आती है और मैं यहीं रुक जाता हूँ। सो ही अलाइटेड, सो ही सैट जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। देखो, ये मान लीजिए यहाँ पर वो रुक गया और सोने की कोशिश करने लगा। और जैसे ऊपर देखता है तो क्या देखता है, I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around and prepared to go to sleep. उसने कहा, जैसे उसने ऊपर देखा कि पूरा का पूरा स्टैचू जो है, स्टैचू के नीचे पूरा वो आ गया, और बोलता है, अरे वाह, आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. लेकिन जैसी वो सोने वाला था, जैसी वो अभी उसको नींद आने वाली थी, एक बड़ी सी पानी की बूंद जो है उसके ऊपर आकर गिरी। और वो कहता है, व्हाट ए क्यूरियस थिंग, अरे कितनी अजीब बात है. ही क्राइड, देयर इज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड इट इज रेनिंग. वो कहता है कि अरे आसमान में एक भी बादल नहीं है, स्काई जो एकदम क्लियर है और ब्राइट है, फिर भी बारिश हो रही है. देन अनदर ड्रॉप फेल. उसके बाद और एक जो है पानी की बूंद गिरी. फिर उसका मूड खराब हो गया. उसने कहा, व्हाट इज द यूज ऑफ ए स्टैचू इफ इट कैनॉट कीप द रेन ऑफ. ही सेड, I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. उसने कहा कि यार ये किस काम का स्टैचू है, ये गोल्ड का होगा ये, है ना, तो लेकिन मेरे किस काम का है ये तो मुझे छोटी छोटी बूंद से भी नहीं बचा पा रहा है, बारिश की बूंदों से
नहीं बचा पा रहा, तो उसने डिसाइड किया कि वो किसी चिमनी पॉट पर जाकर अपना डेरा वहाँ जमाएगा। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स एंड अ थर्ड ड्रॉप फेल, लेकिन वो अपने पंख खोलता उड़ने के लिए और उड़कर वहाँ से निकल जाता, तीसरी बूंद गिरी। अ थर्ड ड्रॉप फेल, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, अ थर्ड ड्रॉप फेल। एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, और उसने ऊपर देखा कि पानी सचमुच कहाँ से आ रहा है। एंड ओ व्हाट डिड ही सी, और उसने क्या देखा, देखिए। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वेर फिल्ड विथ टीयर्स, जो हैप्पी प्रिंस की जो आंखें थी वो आंसुओं से भरी हुई थी। एंड टीयर्स वेर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, गोल्डन बेडरूम, गोल्डन चिक्स, समझ रहे आप। और क्योंकि वो गोल्ड का बना है पूरा, और आंसू जो है उसके गोल्डन चिक्स से जो है टप 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 नीचे गिर रहे थे। उसमें से 2-3 बूंदे किसके ऊपर गिरी, वो लिटिल स्वैलो के ऊपर गिरी। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट दैट द लिटिल स्वैलो वॉज फिल्ड विथ पिटी, उसका फेस जो है इतना सुंदर दिख रहा था, गोल्ड का बना है वो, और चेहरा भी उसका बड़ा ही सुंदर है, हैप्पी प्रिंस का गोल्ड का बना है। उसने एक बड़ी क्यूरियस चीज़ देखी, बड़ी अजीब चीज़ देखी, स्टैच्यू जो है वो रो रहा है। तो उसका मन बड़ा दया से भर गया, किसका, लिटिल स्वैलो का, और उसने पूछा हु आर यू, ही सेड, उसने कहा कि तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, उसने जवाब दिया कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तो स्वैलो ने कहा इफ यू आर द हैप्पी प्रिंस व्हाई आर यू वीपिंग देन, तो तुम रो क्यों रहे हो। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, ड्रेंच्ड यानी वेट कर देना, भिगा देना। तो कहता है अरे तुमने तो मुझे पूरा भिगो दिया, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। फिर हैप्पी प्रिंस अपनी कहानी सुनाता है। हैप्पी प्रिंस बताता है कि व्हेन आई वाज अलाइव एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट आंसर्ड द स्टैचू, आई डिड नॉट नो वेयर व्हाट टीयर्स वेयर। जब मैं अलाइव था, जब मैं जिंदा था और एक मेरा ह्यूमन हार्ट था, तो आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वेयर, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस वेयर सॉरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, क्योंकि मैं पैलेस में रहता था, क्योंकि मैं राजमहल में रहता था, जहाँ पर दुख को आने की परमिशन नहीं थी, मतलब वहाँ पर दुख नहीं था। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे सारे कोर्टियर्स, मेरे सारे दरबार के व्यक्ति, कोर्टियर्स का मतलब यहाँ पे दरबारी, दरबार के व्यक्ति है ना, मंत्री, दास दासिया, वो सब उसको बोलेंगे हम कोर्टियर्स। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, वो सब मुझे हैप्पी प्रिंस कहकर बुलाते थे और मैं सचमुच में हैप्पी था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, मैं इसी तरीके से जिया और इसी में मेरी मृत्यु हो गई। देखिए ये हैप्पी प्रिंस रो रहा है यहाँ पे, और वो लिटिल स्वैलो जो है उसका मन एकदम प्रेम से भर गया, दया से भर गया। उसको पूछने लगा, देखो मूनलिट नाइट है, उसको पूछने लगा है कि क्या हुआ है बताओ। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी। अगलीनेस यानी गंदगी, और मिजरी का मतलब होता है दुख। तो बोलता है कि अभी मैं, मुझे जो है, जब मेरी डेथ हो गई, मैं जब महल में था तो मैं शहर के दुख के बारे में जानता नहीं था कि कितना दुख भरा ये दुनिया है, मेरे शहर में ही कितना दुख है। लेकिन अब जब इन्होंने मुझे इस मेरा स्टैचू बनाकर, टॉल स्टैचू बनाकर जो है यहाँ पर बीचों बीच मुझे खड़ा कर दिया, तब जो है मैं पूरे शहर की जो बुराई है, पूरे शहर में जो गरीबी है, पूरे शहर में जो मिजरी है, दुख है, वो देख पा रहा हूँ। एंड थॉट माई हार्ट इज मेड ऑफ, एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड एट आई कैनॉट चूज बट वीप। बोलता है मेरा हार्ट ह्यूमन हार्ट नहीं है अभी, ऊपर से मैं जरूर गोल्ड का बना हूँ, मेरे आंखें सफायर्स की है, मेरे हाथ में रूबी डायमंड है, लेकिन मेरा जो हार्ट है ये लीड का बना हुआ है। लीड एक धातु होता है, लीड एक जो है एक प्रकार का। तो बोलता है मेरा हार्ट जो है लीड का बना है और मेरे पास अभी कोई चारा नहीं है, मैं बस रो सकता हूँ, मैं उनकी मदद भी नहीं कर सकता है। वॉट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड सेड द स्वैलो टू हिमसेल्फ। स्वैलो ने अपने आप से कहा अच्छा तो ये सिर्फ ऊपर से गोल्ड का बना है पूरा, हाँ, अंदर से गोल्ड का नहीं है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, और वो इतना पोलाइट था, इतना नम्र था स्वैलो,
कि उसने उससे पूछा नहीं कि अरे मुझे तो लगा कि तुम पूरे जो है गोल्ड के बने हो, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो हैप्पी प्रिंस अपनी कहानी बताने लगा कि फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट देर इज ए पुअर हाउस। उसने कहा वो देखो, वो दूर, यहाँ से वो दूर देखो, वहाँ से दिख रहा है एक गरीब सा घर है। गरीब सा घर है मतलब एक टूटा फूटा सा घर है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, उसकी एक खिड़की खुली है, एंड थ्रू इट कैन आई कैन सी ए वुमन सीटेड एट ए टेबल। और यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ वो एक वहाँ पर लेडी बैठी है, ठीक है। एक उसकी विंडो जो है उसके घर की खुली है। हर फेस इज थीन एंड वॉर्न, उसका जो चेहरा है एकदम थीन और वॉर्न है, मतलब एकदम जो है वो कमज़ोर लग रही है और उसका चेहरा एकदम जो है थका हुआ सा लग रहा है। एंड सी हैज़ कोर्स रेज्ड हैंड्स ऑल पिक्ड बाय द निडल फॉर सी इज ए सिमस्ट्रेस। सिमस्ट्रेस होते हैं पुराने ज़माने में जो टेलरिंग का काम करते थे, पुराने ज़माने में वो जो सिलने का काम करते थे, तो सुई से काम करते थे वो। तो निडल से वो बोल रहा है कि वो सिमस्ट्रेस है वहाँ पे, बड़ी गरीब है, और उसकी जो पूरी उंगलियां है वो क्या हो गई है, पूरी उंगलियां उसकी प्रिक्ड विथ निडल, मतलब पूरी उंगलियों में उसकी निडल्स लगा हुआ है, क्योंकि रात दिन रात वो काम कर रही है। क्या कर रही है वो? सी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए सैटिन गाउन फॉर द लवलीएस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर। उसने कहा कि क्वीन की एक मेड है ना, तो रानी के एक मुख्य दासी है मान लीजिए, वो भी बड़ा अच्छा ओहदा रखती है राजघराने में, उसके गाउन पर, गाउन मतलब वहाँ पे जो है पार्टीज वगैरह जाते हैं तो लॉन्ग गाउन्स पहनने की फैशन है ना यूरोप में। तो वो एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स, मतलब वो फ्लावर्स को एम्ब्रॉयडर कर रही है टू वियर एट द कोर नेक्स्ट कोर्ट बॉल। और कोर्ट बॉल का मतलब यहाँ पे पार्टी होती है, डांस पार्टी होती है। कोर्ट का मतलब दरबार, कोर्ट है ना दरबार, और बॉल का मतलब पार्टी है, डांसिंग पार्टी होती है। तो बोलते हैं नेक्स्ट कोर्ट बॉल में पहनने के लिए जो है उसको, जो है कपल्स वहाँ पे डांस करते हैं, तो बोलता है कि वहाँ पर पहनने के लिए वो क्वीन की जो मेड है, मेड ऑफ ऑनर है, उसके लिए वो क्या बना रही है? फ्लावर्स एम्ब्रॉयडर कर रही है एक गाउन के ऊपर, सैटिन गाउन के ऊपर। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल। ये देखिए यहाँ पे वर्ड की मीनिंग भी लिखी है, देखिए ये इसका बच्चा जो है यहाँ पे सोया है ना, और वो क्या कर रही है लेडी? ये एम्ब्रॉयडरी कर रही है, ठीक है। तो बोलता है कि इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, ही हैज़ फीवर, उसको फीवर है, उसकी तबीयत खराब है, एंड ही इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। और वो गरीब है और उसको फीवर है बहुत उस बच्चे को, और वो बच्चा जो है अपने मदर से किस चीज़ की डिमांड कर रहा है? ऑरेंजेस मांग रहा है। बट हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, सो ही इज क्राइंग। लेकिन उसके मदर के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग बट रिवर वाटर, सो ही इज क्राइंग। Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? बोलता है swallow, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? क्या तुम मेरे sword hilt से इस रूबी डायमंड को निकाल सकते हो? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. मेरे पैर जो है इस पेडस्टल पर जो है, इस प्लेटफॉर्म पर जो है फंसे हुए हैं, और मैं जो है यहाँ से नहीं निकल सकता। तो क्या तुम इतना मेरा काम कर दोगे? सो दिस इज़ फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। अभी मेरा क्लास है, तो वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच।